Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. So, my name is Sandhya and I'm your maths teacher. From today onwards, I'm going to teach you your maths subjects. So, in today's class, we are going to start with your chapter number 1. Chapter number 1 is rational numbers. So, इस क्लास में हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बच्चों, embark on. Seema wants to buy 3 pens, each costing rupees 5. Her brother Sachin wants to buy 2 similar pens. They decided to go to a wholesale shop to make their purchase. At the shop, the shopkeeper tells them that a packet of 5 pens costs rupees 22. Now, Seema and Sachin need to figure out the cost of each pen to ensure they are getting a good deal. So, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है? सीमा क्या करना चाहती है? 3 पेन्स बाय करना चाहती है और ईच की कॉस्टिंग क्या है? ₹5. हर ब्रदर सचिन वॉन्ट्स टू बाय 2 पेन. उसका भाई कितने पेन खरीदना चाहता है? 2 सिमिलर. नाउ दे डिसाइडेड टू गो अ होलसेल शॉप. वहां पे उन्होंने दुकान पे जाने को सोचा. अब दुकानदार ने बोला कि एक पेन का पैकेट है जिसमें 5 पेन है, उनका कॉस्ट है ₹22. नाउ सीमा एंड सचिन नीड टू फिगर आउट. सीमा और सचिन को इस सॉल्व करना होगा कि एक पेन का प्राइस क्या है, सो दैट जितने पेन वो खरीदना चाहते हैं उसका कॉस्ट आराम से निकल जाए. सो यहाँ पे देखिए बच्चों, सीमा knows that each pen cost ₹5 when bought individually. सीमा को पता है कि अगर वो इंडिविजुअली पेन खरीदती है तो ₹5 का पेन आएगा. ठीक है. However, the shopkeeper offers a packet of 5 pens ₹22. और शॉपकीपर ने क्या ऑफर दिया कि अगर आप पैकेट खरीदते हो 5 पेन का तो वो ₹22 में यानी ₹22 में मिलेगा. To find out the cost of each pen when bought in a packet, we divide the total cost of the packet by the number of pens in it. So mathematically, this is represented as ₹22 divided by 5, cost of each pen, and dividing ₹22 by 5 gives us ₹4.40. So that means क्या हुआ कि हमने क्या करा, पेन में 5 पैकेट है, पैकेट में 5 पेन है. मैं बैठ बच्चों, एक पैकेट में 5 पेन है, राइट. और उसका कॉस्ट दुकानदार ने कितना बोला? ₹22. तो हमने कॉस्ट ऑफ ईच पेन को निकालने के लिए डिवाइड कर दिया 22 by 5 और इससे हमें क्या पता चला? कॉस्ट ऑफ ईच पेन जो कि ₹4.40 था. नाउ यहाँ पे क्या पता चला कि हर पेन का कॉस्ट कितना है. नाउ डिवीजन रिजल्टेड इन अ नंबर दैट इज नॉट अ होल नंबर. हमें पता है कि जो हमें आउटकम मिला है, जो रिजल्ट मिला है, दैट इज नॉट अ होल नंबर बट अ फ्रैक्शन और डेसिमल, स्पेसिफिकली ₹4.40. Here 4.40 is a rational number because it can be expressed as a fraction where both the numerator 22 and the denominator 5 are integers. अब बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि 4.40 एक रेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि इसे हम p by q यानी एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर 22 है एंड डिनोमिनेटर 5 है, राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हियर यू कैन सी. अब हम देखेंगे बच्चों एक्सप्लोरिंग एसेंशियल आइडियाज. द फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर्स. सो नाउ वी विल फिगर आउट व्हाट इज रैशनल नंबर्स. A rational number is a number that can be expressed as a quotient or fraction p by q of two integers, where p the numerator is an integer and q the denominator is non-zero integer. What does it mean? So basically यहाँ पे क्या बोला गया है कि रैशनल नंबर क्या होता है? वो एक नंबर है जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर p and q both are integers and where p the numerator is an integer and q is also non-zero integer. Remember that non-zero means q never be zero. Okay, can never be zero. Now rational number are numbers that can be written in the form of p by q as I told you, and p are integers and q are also integers, but remember q will never be equal to 0. An integer is a rational number as it can be expressed a upon 1 where a is an integer. Rational numbers include both positive and negative number as well as 0. Rational numbers can be represented on the number line and every fraction is a rational number. I hope ये आपको points clear हुए. Now let's move forward and here you can see operation on rational numbers. So there are some operation which we can perform on rational numbers. The first one is addition. If a upon b and c upon b are two rational numbers with the same denominator b, remember that we have same denominator. In that case, what will we do? We will add the numerator a plus c upon b. Clear? Now example 5 upon 3 plus 4 upon 3. You can see 5 plus 4 you will get 9 upon 3. Basically your answer will be 3. Now if a upon b and c upon d are two rational number such that b is not equal to d, then
A upon B plus C upon D is equal to AD plus BC upon BD. ओके आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, सो एलसीएम का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. फॉर एग्जांपल -9/7 प्लस 5/8 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में. 8 की मल्टीप्लाई -9 से होगी, 7 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, एंड देन यू विल ऐड बोथ ऑफ दीज नंबर्स. -72 प्लस 35 you will get -37 upon 56. Clear? Now let's move forward, or we'll see the concept additive inverse. So if A upon B and C upon D are two rational numbers, okay, such that A upon B plus C upon D is equal to 0, then A upon B is called the additive inverse of C upon D, and vice versa. For example, A upon B plus A minus A upon B. What does it mean? A plus A upon B, ये प्लस का है, and minus A upon B the same number, but यहाँ पर माइनस का साइन आ गया है, and it will give you 0. So minus A upon B is an additive inverse of A upon B. It follows that additive inverse of 3 upon 7 is minus 3 upon 7, and additive inverse of minus 3 upon 7 is 3 upon 7, vice versa. Okay, now let's see subtraction. If A upon B and C upon D are two rational numbers, then subtracting C upon D from A upon B means additive inverse of C upon D and A upon B. Let's see an example. The subtraction of C upon D from A upon B is written as A upon B minus C upon D. This is the form you will write. Okay. Now for example, you have to subtract -4 upon 9 from -5 upon 7. How will you do this? So look at here. -5 upon 7 minus -4 upon 9. Now minus plus. Now you can easily solve it. 7 9s are 63. 9 5s are 45. 7 4s are 28. इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा -17 upon 63. Clear? Now let's move forward and let's see the next one, that is multiplication. So product of two rational number is equal to product of their numerators and product of their denominators. For example, if you have two rational number A upon B and C upon D, how will you find out the product of it? So A will be multiplied by C, A will be multiplied to C, and B की मल्टीप्लीकेशन डी से हो जाएगी. आंसर आएगा AC upon BD. Now let's see the reciprocal of a rational number. If A upon B and C upon D are two rational numbers such that A upon B into C upon D will give you 1, then A upon B is called the reciprocal of C upon D, and vice versa. Reciprocal is also known as multiplicative inverse. What is it called? Multiplicative inverse. Now next है बच्चों डिवीजन. यहाँ पे देखिए, डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. If A upon B and C upon D are two rational numbers such that C upon D will never be equal to 0, then how can you solve it? A upon B divided by C upon D. How will you write it in the form of multiplication? You have to do the reciprocal of C upon D. Reciprocal of C upon D will be D upon C, and the sign will get changed into multiplication. Now you can easily solve it. For example, you have to divide 9 upon 11 by 3 upon 5, right? So 9 upon 11 divided by 3 upon 5, reciprocal of 3 upon 5 is 5 upon 3. Sign will change from division to multiplication. 9 5s are 45, okay, and 11 3s are 33. So you will get 45 upon 33, and you can also divide it by 3, so you will get 15 upon 11. Here you can see an answer. Okay, is it clear? Now let's move forward and let's see an exercise question. So in this exercise question, read out the first question, which is saying add the following rational number. How will you do this? It is very simple. Now you can see here denominators are same, so these number will get add, and you will get 5 plus minus 11 minus 6 upon 2, and when you will solve it you will get -3. राइट, सेम मैनर में बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एंड फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए, इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपने पढ़ा था 8 into 4 प्लस -7 into -5, देन डिनोमिनेटर में -7 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 8 से. नाउ अब आप इसे सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा? 32. मैं यहाँ लिखती हूँ बच्चों 32. 7 5s are 35 अपॉन -8 7s are 56. सो आपका आंसर कितना आएगा? 67 अपॉन -56.
6। क्लियर? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेम मैनर में सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, एंड -18 + 8 कितना हो जाएगा, -10/5, यू विल गेट -2। कट जाएगा ना 5 से। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। कैसे करेंगे, -18/25 मल्टीप्लाई बाय 40/-36। नाउ यू कैन सी दैट ये 18 के टेबल से दोनों कट रहे हैं। 18 1 18, 18 2 36। नाउ 2 1 2 और 20 टाइम्स में 40 आ रहा है, तो कितना हो गया, -1 × 20/25 मल्टीप्लाई बाय -1। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 4/5। वाई? क्योंकि ये भी तो कट रहा है 5 के टेबल से। 5 4 20 एंड 5 5 25, सो 4/5 इज योर आंसर। नाउ इन द सेम मैनर डिवाइड द फॉलोइंग। आपको डिवाइड करना है कैसे, देखिए -22/26 के डिवीजन करनी है -33/39 से, इससे डिवाइड करना है। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, -22/26, ये एज इट इज रहेगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 39/-33। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट। हाउ? लेट्स सी हियर। 13 2 26, 13 3 39, 11 2 22, 11 3 33। ओके, एंड 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बताइए कितना बचा बच्चों, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपका जो आंसर आया है दैट इज -1/-1, यू विल गेट 1, राइट। सो यहाँ पे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट इजीली। हाउ? पहले आप इनको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, एंड देन आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. Okay, next one. Here you can see properties of addition of rational numbers. So in this first you will see closure property. So the sum of two rational number is always a rational number if a/b and c/d be two rational numbers, then a/b plus c/d is a rational number. अगर आप दो rational number को add कर रहे हो तो उसका जो outcome आएगा वो भी rational number ही आएगा. Since addition of rational number produces rational number, we say that collection of rational number is closed under addition. This property is called the closure property. क्या बोलते हैं बच्चों, इसे closure property बोलते हैं for addition of rational numbers. For example, if you are adding 3/4 plus 7/3, you will get the result 37/12. Now it is also a rational number. Next is commutative property. If a/b and c/d are two rational number, then a/b plus c/d is equal to c/d plus b/a. So basically we say that addition of two rational number is commutative. How? Because this property is called commutative property for addition of rational number. Basically means is that अगर आप दो rational number को add कर रहे हो, उनका order change कर देते हो, तब भी आपको outcome same मिलेगा. For example यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखिए 8 7 56, 8 7 56, 7 3 21 एंड 8 5 40. सेम इन दिस मैनर यहाँ पे भी देखिए आप दूसरे वाले में 8 5 40 एंड 7 3 21. सॉल्व करेंगे आपको सेम ही आउटकम मिलेगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो a/b प्लस c/d एंड उसके बाद आप e/f को ऐड करो. सेम अगर आप इन दोनों का यहाँ पे आपने पेयर बना के ऐड किया, आप नेक्स्ट टाइम में c/d प्लस e/e का पेयर बना के फिर a/b ऐड कर रहे हो. सो हम क्या कह सकते हैं, हमने तीन रैशनल नंबर लिए. वी से दैट द रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, बिकॉज जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको सेम ही आउटकम मिलेगा. यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल वेरीफाई करते हैं. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको -1/8 मिलेगा. फिर 2/5 माइनस का ऐड करने पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज -21/40. यहाँ पर बच्चों जब आप इन दोनों को पहले ऐड करते सो आपको 7/20 मिलता है एंड उसमें -7/8 करने पे आपको मिलता है -21/40. सो आपने एक चीज नोटिस करी, दोनों तरफ ही आपको आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है. सो दे बोथ आर इक्वल एंड दे बोथ आर फॉलोइंग, I mean LHS and RHS following the associative property. Next let's see additive property of 0. My bad. Additive property of 0. So if a/b is any rational number, then 0 plus a/b is equal to a/b plus 0 will always give you a/b. If we add
0 to any rational number or any rational number is added to 0, the rational number remains the same. Therefore, 0 is called the additive identity of rational numbers. For example, if you are adding 0 plus 2 upon 5 is equal to 2 upon 5. So, यहाँ पर आप दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप 2 upon 5 में 0 ऐड करो तब भी आपको 2 upon 5 मिलेगा. So, in both cases the answer are same. So, you can say this is called additive property. Now let's see properties of subtraction of rational numbers. So closure property. The result of subtraction of one rational number from another is again a rational number. How? If a upon b is subtracted from c upon d, then c upon d minus a upon b is again a rational number. We say that the collection of rational number is closed under subtraction. This property is also known as closure property for subtraction of a rational number. Let's see an example. So अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या बोला गया है कि result of subtraction of one rational number from another rational number is again a rational number. यहाँ पे आप देखिए -3/5 भी rational number है, -7/6 भी rational number है. जब आप इन दोनों को separate करते हैं तो आपको जो outcome मिलता है that is 17/30. कि 17/30 rational number है? Yes, it is also a rational number. So this is why it is following the closure property. Next property of 0 क्या कहती है बच्चों? If 0 is subtracted from a rational number, the result is the rational number itself. For example, if 0 is subtracted from a rational number a upon b, for example a upon b minus 0, you will get the same number a upon b itself. Okay, now let's see exercise 1b. In this exercise, let's see fill in the blanks using commutative property for addition of rational number. आपको commutative property को use करते हुए इन fill in the blanks को fill करना है. तो कैसे करेंगे? हमें पता है order change हो जाता है. So 4/9 plus -3/7, right? Next, ऐसे ही बच्चों -5/31 plus -11/29. So this is how you will write the answer. Next, आपको इसमें क्या बोला है? Associative property को use करते हुए आपको fill in the blanks fill करना है. तो कैसे करेंगे? Order will be same. Okay? बस पेयरिंग किसी और की होगी. फॉर एग्जाम्पल 2/13 एंड 7/6. पहले फर्स्ट एंड सेकंड की पेयरिंग होती है, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड की पेयरिंग हो जाएगी. क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर वन. स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो बच्चों यहाँ पे बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. इजीली आप देख सकते हैं कॉम्यूटेटिव. ओके, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी आप बता सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. एसोसिएटिव, राइट? ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. इफ a is equal to 8/9, b is equal to -3/8, then verify a plus b is equal to b plus c. आपको क्या करना है? a की जगह a की वैल्यू पुट करनी है, b की जगह b की वैल्यू पुट करनी है. ऐसे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या करनी है? वेरीफाई करनी. कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स प्रोड्यूस रैशनल नंबर, वी से दैट द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर. अब बच्चे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करनी है. तो आपको पता है कि जब आप दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो आपको रिजल्ट में rational number ही मिलता है. For example, 3/4 and 2/7, they both are rational number, and when you are multiplying both of that number, 6/28, which is also a rational number. Okay. Next, commutative property. If a/b and c/d are two rational numbers, then a/b multiplied c/d is equal to c/d multiplied by a/b. They both will be equal. That means order change करने पे भी आपका प्रोडक्ट सेम ही आने वाला है. That is why we say that rational numbers are commutative under multiplication, and this property is known as commutative property for multiplication of rational numbers. Okay, now for example, if you are multiplying 3/4 multiplied by 8/26, when you will solve it you will get 24/104. अब आप देखिए 3 से कट रहा है. ओके, 3 से काट लीजिए या फिर 8 से काट लीजिए. 8 से भी डिवाइड हो रहा है. 8 3 24, 8 1 8, 8 3 24. So answer will be 3/13. It is also a rational number. And now you can see if you will change the order, for example 8/26 multiplied by 3/4, so still answer will be 3/13, and you can see you are getting the same output. That is why it is following commutative property. Okay, next is associative property. So if a/b, c/d and e/f three rational numbers, and you can see we are multiplying a/b into c/d and then
upon f. Now we are changing the pair. So when you will solve it, you will get the same outcome. कैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपने -2/5 इंटू 3/7 की पहले मल्टीप्लीकेशन की एंड देन 3/8 की मल्टीप्लीकेशन की, आपको कितना आउटकम मिला? -9/140. सेम बच्चों आपने यहाँ पे इन दोनों का पेयर बना दिया. सो ये हुआ 9/56. यहाँ पे देखिए एंड देन इसे सॉल्व करने पे मिला आपको -9/140. सो दोनों में आपको सेम आउटकम मिल रहा है यहाँ पर. सो बेसिकली वी कैन से दैट रेशियल नंबर्स फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Next बच्चों, multiplicative identity. So if a upon b is a rational number, then 1 into a upon b is equal to a upon b, and so 1 is called multiplicative identity of rational number. This is called property of 1. You can see अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 3/8 से, आपको वही सेम नंबर मिलता है, और अगर 3/8 की भी मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, अगेन यू आर गेटिंग द सेम नंबर itself. Now property of 0, if a upon b is a rational number, then 0 into a upon b, and कितना मिलेगा आपको? 0. एंड ऐसे ही बच्चों अगर आप a अपॉन b की मल्टीप्लाई बाय 0 से करते हो तब भी आपको 0 मिलेगा. ओके, यहाँ पे बच्चों आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो. 3/11 की मल्टीप्लाई आपने 0 से करी, सो आपको कितना मिल रहा है? 0. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ 0. What is it called? Property of 0, and that is multiplicative identity. So ये multiplication में आपको ध्यान रखना है. Now let's see distributive property of multiplication over addition or subtraction. So अगर आपके पास 3 rational number है a upon b, c upon d and e upon f are 3 rational numbers. Then आप a upon b की multiplication करो c upon d plus e upon f से, या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि a upon b की मल्टीप्लाई आप c upon d से कर रहे हो, और फिर a upon b की मल्टीप्लाई आप e upon f से कर रहे हो. एंड नाउ यू कैन सी इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा. दिस इज अ प्रॉपर्टी, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस, ये सब्ट्रैक्शन पे भी फॉलो होती है. पहले a अपॉन b की मल्टीप्लाई c अपॉन d से करी, फिर a अपॉन b की मल्टीप्लाई e अपॉन f से करी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ वेरीफाई, पहले 2/5 की मल्टीप्लाई आप -3/7 से करोगे. ठीक है, यहाँ पे देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर 2/5 की मल्टीप्लाई 6/11 से करेंगे. अब जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों बताइए? दैट विल बी 10 अपॉन, माय बैड, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. तो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9/77. हमने पहले क्या करा? LHS लिया और LHS में इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमें मिला 9/77. देन 2/5 से इसकी मल्टीप्लाई करी. दिस इज द आंसर. नाउ RHS को सॉल्व करते हैं. सो RHS में देखिए ये हो जाएगा -6/35 एंड 2 6 12/55. नाउ इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 18/385, और दोनों तरफ से आपको आंसर अभी भी सेम मिल रहा है. सो दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ distributive property. Okay, now you can say that LHS is equal to RHS. So basically these both are equal. Okay, now property of division of rational numbers. So you can see that here, if a upon b and c upon d are two rational number, then a upon b is divisible by c upon d is always a rational number, and c upon d will never be equal to 0. Now you can see that बच्चों 0 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है. That is called not defined. Okay, so now let's see the second property. So आप second property देखिए, first समझ में आ गया आपको कि कभी भी डिनोमिनेटर या फिर जिस नंबर से आप डिवाइड करो वो 0 नहीं होना चाहिए. If a upon b is a rational number, then a upon b should not be equal to 0. a upon b divided by a upon b, you will always get 1, because कि अगर कोई भी नंबर है, अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो आपको हमेशा ही 1 मिलता है. ओके, नेक्स्ट, if a upon b is a rational number, then a upon b divided by 1, you will get the same number itself. Okay, so अगर आप -1 से डिवाइड कर रहे हो तो वो माइनस का a upon b हो जाता है. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज में देखिए क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 into 6 यू विल गेट 6, 11 into 7/77. इसी का अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो 6/7 into 1/11, and 6 into 1 again you will get 6, and 7 into 11 you will get 77. सेम आंसर अभी भी आपको मिल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है बच्चों,
फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आपको क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे वेरीफाई करना है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8/9 एंड जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -48, 8 6 48 एंड 5 7 35, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा बच्चों, 8 8 64, 8 4 32 एंड 6 कैरी 384। और कैसा है 384, माइनस का, ओके। एंड यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा दे रही हूँ, दिस इज माइनस, ओके। एंड 9 5 45, 9 3 27, 315, ये आपका आंसर आया है। बट अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो जो कि है 8/9 मल्टीप्लाई बाय -8/5, ठीक है, ये एक आपने पेयरिंग चेंज कर दी, एंड मल्टीप्लाई बाय 6/7, ओके। सो 8 8 64 माइनस का, 9 5 45, ओके, मल्टीप्लाई बाय, दिस इज 45, माय बैड स्टूडेंट्स, 45, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 6/7 से। अगेन आप सॉल्व कीजिए इन दोनों को, 6 4 24 एंड 384 माइनस का अपॉन कितना आएगा, 315। तो अगर आप ध्यान से देखिए, सो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी जो फॉलो की, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। सो दिस इज हाउ इट इज फॉलोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको वेरीफाई करना था, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों। आप पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, देन एक आपको ओपन करके सॉल्व करना है। कैसे, देखिए, 5/4 मल्टीप्लाई बाय -6/7 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट में जो है इन्हें सॉल्व करके आप LHS इक्वल टू RHS, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, आपको यहाँ पे फॉलो करना है। नाउ राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे यहाँ बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। वी कैन इजीली सी दिस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सो दिस इज फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ओके। एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज नॉट पर्टिकुलर, लेट्स सी, वेरीफाई इट। Multiplicative identity, my bad बच्चों, not inverse, this is multiplicative identity, okay, okay। So now I hope ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अभी हमने जस्ट देखी थी एसोसिएटिव। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, 11/7 यहाँ पे भी है, -9/16, तो यहाँ क्या आएगा, -9/16। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोनों है, तो कौन सा बचा है यहाँ पे, -5/8, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो फॉलो हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, सेम नंबर कब मिलता है, जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इस तरीके के बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ यू कैन सी हियर you have some questions, prescribed questions with solution। so आप इन questions को practice कर सकते हैं, multiple choice questions कर सकते हैं, जो हमने concept सीखा है उन्हीं से related है। तो बच्चों इन questions को solve कीजिएगा, ठीक है। इस chapter में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में with a new chapter। till then keep learning and keep exploring। bye bye students।